Hey students, so after a long time we are back to classes. I hope you all are doing good. So I have already completed the asexual reproduction and sexual reproduction in plants. Let's start from the sexual reproduction in animals. As I have told you, sexual reproduction is all about the combination of male gametes and female gametes. Clear? The male gametes and female gametes, they're very important. That simply means sexual reproduction requires two parents, one male parent, one female parent. Clear? That means from the male parent, the male gamete will be chosen, and from female parent, the female gamete will be chosen. Clear? Male parent produces male gametes, female produces female gametes. When this male and female gametes, they will combine, okay, reproduction takes place. And as because the gametes are involved here, gametes means sex cells, the sex cells are involved here, we call it as a sexual reproduction process. It is clear that sexual reproduction requires two parents of opposite sexes. I am not telling two parents of same sexes. मेल मेल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, फीमेल फीमेल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो अलग सेक्स के सेल्स चाहिए. क्लियर? मेल सेक्स सेल्स, female sex cells. Clear? Okay, done. So now let's know about what do you mean by a gamete. Gamete means simply sex cell, the reproductive cell. We call it as a reproductive cell. Gamete is a reproductive cell which helps for reproduction. Clear? Gamete is a reproductive cell which helps for reproduction. Clear? Getting my point? We also call it as gametic cell or sex cell. So in animals, generally we call the sex cells by two names. Okay, one is male gamete, which is generally called as sperm. Okay, in animals. Okay, and the other one is female gamete, which is generally called as ovum. Sometimes as ova, sometimes as egg, whatever you call. Ovum, this is singular. Ova, it is plural. Egg is the other name of this ovum. Egg or eggs, whatever you say. Clear? Sperms, sperms, no problem. Clear? Getting my point, everyone? Male gametes called as sperms. It is the general name of the sex cell in males. तुम पूछोगे सर तो ह्यूमन से बोलते हैं, सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, बाकी एनिमल्स में भी अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम उसको स्पर्म्स ही बोलेंगे. क्लियर? इट्स अ जनरल नेम. क्लियर? फीमेल गेमेट्स को क्या बोलेंगे? ओवम बोलेंगे. सिंगुलर है तो ओवम, प्लूरल है तो ओवा, या तुम इसका दूसरा नाम एग या एग्स कुछ भी यूज कर सकते हो. क्लियर? समझ में आ रहा है? नाउ लेट्स नो द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म एंड ओवम. स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेट्स सी. ओके, so I've made a very simple structure of a sperm here. You can see. Let me level it. Okay. The outermost layer here, it is called as acrosome. Acrosome. Clear? This is the outermost layer of a sperm. ये book में नहीं दिया गया. I'm just adding this small part for you. Clear? सबसे बाहर का जो लेयर होता है ये एक्रोसोम होता है. ओके, ये एक्रोसोम एक प्रोटेक्टिव लेयर है और इसमें खास तरह के कुछ एंजाइम्स हैं. इसमें कुछ एंजाइम्स भी हैं. ये एंजाइम्स क्या है बताऊंगा मैं. ये वर्ड याद रखो, एक्रोसोम. ओके, ठीक. ये बीच का सेंट्रल पार्ट दिख रहा है, ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियस. क्लियर? न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम्स होंगे. क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होगा? जीन्स होगा. जीन्स मींस कैरेक्टर पैकेट. क्लियर? ये न्यूक्लियस है, इसका मेन पार्ट है. याद रहे, अगर हम बात करते हैं एक स्पर्म का तो उसका तीन पार्ट है. ये उसका हेड पार्ट, ये उसका मिड पार्ट, ये उसका टेल पार्ट. क्लियर? ये उसका हेड, सिंपली बताऊंगा तो ये उसका हेड पार्ट है, ये उसका मिड पार्ट है, ये उसका बचा कुचा सा टेल पार्ट है.
क्लियर? 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड पार्ट, मिड पार्ट, टेल पार्ट। हेड पार्ट का पार्ट्स बता रहा हूं। पहला पार्ट है तुम्हारा एक्रोसोम, इट्स द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द स्पर्म which is in the head part only, and it contains some special enzymes. Clear? Okay, done. The inner part, this dense part, is nucleus, which contains chromosomes, and these chromosomes contains the characters, the genes. Clear? The space between them, whatever is left, it is filled with cytoplasm. Clear? The cell has cytoplasm, right? So it is a cytoplasmic part. Clear? Done. Okay, and this will be the, यहाँ पे एक और लेयर बनना चाहिए एक्रोसोम के ठीक नीचे। एक्रोसोम या फिर जुड़ा होता है एक्रोसोम, और यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन भी है। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन भी है, ये पार्ट। क्लियर? समझ में आ रहा है? यहाँ पे मोटा लेयर बना नहीं सकता मैं। क्लियर? ये सेल मेम्ब्रेन और एक्रोसोम दोनों जुड़े हुए होते हैं, they both are joined, connected. Clear? Okay, ये है तुम्हारा मिड पार्ट। इस पार्ट के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? यहां होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है टेल पार्ट, इसको हम अदरवाइज बोलते हैं फ्लैजेलम। क्लियर? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है सबको? अपर पार्ट में या हेड पार्ट में क्या क्या है? एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, हाँ, सेल मेम्ब्रेन है। मिड पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया है, और नीचे वाले पार्ट में फ्लैजेलम है। ये जो एक्रोसोम बोल रहा हूं ना, इसमें जो एंजाइम्स है उसके बारे में बताता हूं। देखो, एक्रोसोम के अंदर 2 एंजाइम्स होते हैं। ओके, बस बता रहा हूँ ये तुम्हारे नॉलेज के लिए, ये तुम्हारे बुक में नहीं है, नोट्स पे नहीं लिखा होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर कॉल्ड एज एक्रोमाइसिन, और सिंपलर नेम इज जोनालाइसिन। एक एंजाइम का नाम है जोनालाइसिन, दूसरे का नाम है हाइड्रोलुनिडेज। क्लियर? नया वर्ड है तुम्हारे लिए, फिलहाल तो तुम नहीं पढ़ रहे, बस बता रहा हूँ तुमको मैं। ओके, ऊपर का जो लेयर है एक्रोसोम का लेयर, एक्रोसोम के लेयर में ये 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक का नाम है जोनालाइसिन, दूसरे का नाम है हाइड्रोलुनिडेज। सिंगल वर्ड है, हाइड्रोलुनिडेज। क्लियर? ओके, डन। लेट्स बी इरेज इट। खत्म। यहाँ पे तुम्हारा मेल पार्ट, मेल सेक्स सेल का स्ट्रक्चर और उसका डिस्क्रिप्शन खत्म कर दिया। क्लियर? फीमेल पार्ट पे जाएंगे। Okay, you can see this. Okay, सिंपल सा है। बीच का ब्लैक पार्ट दिख रहा है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। क्लियर? ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये होता है, ये जो एरिया खाली पड़ा ये साइटोप्लाज्म है, पता है हमको। क्लियर? अब देखो, ये जो लाइन दिखा रहा हूं तुमको मैं, ओके, ये गैप तुम्हें दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन के बाहर का, ये पूरा लेयर, ये पार्ट जहां पे मैं लाइंस दे दिया हूं, ये है जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा। अरे यार कुछ जगह नहीं हो रहा। ओके, तो ये जो लाइन है और ये जिगजैग बनाया हूं, इन दोनों का दोनों नाम है। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, तुम देख सकते हो। मेन पार्ट ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ये उसका सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। खत्म। अब बाकी बचा ये लाइनिंग पार्ट और ये जिगजैग पार्ट। थोड़ा मिटा रहा हूं उसको। जो लाइनिंग पार्ट है उसका नाम है जोना पेलिसुडा। ओके, जोना पेलिसुडा। और जो जिगजैग पार्ट है ये वाला, उसका नाम है कोरोना
रेडियाटा। तो स्पर्म के ओवम के ऊपर भी 2 ठो प्रोटेक्टिव लेयर है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी 2 ठो प्रोटेक्टिव लेयर है। जैसे उधर सेल मेम्ब्रेन के साथ एक और लेयर था एक्रोसोम, इधर 2 लेयर है ऐसा कि ये क्लियर, जोना पेलिसुडा और कोरोना रेडियाटा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा लगता है। स्पर्म का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, उसके बाद तुम्हारा ओवम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। बस स्ट्रक्चर जानना है, ये इतना डिटेलिंग बुक में नहीं दिया गया। क्लियर, फिर भी तुम्हारा एनसीईआरटी बुक जरा चेक करना, अगर वहां पे दिया है कुछ इन टॉपिक्स के बारे में, आई विल गिव यू मोर डाटा अबाउट इट। क्लियर, ओके, सो वी आर क्लियर अबाउट द मेल gametes and female gametes. Now we should know that what happens to this. Okay, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का काम क्या है? सिंपल फॉर्मूला, मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स they will combine, they will fuse, okay, they will fuse with each other to give you zygote. Simple formula, male gametes, female gametes, they will fuse with each other to give you zygote. What is zygote? Zygote is a fertilized cell or fertilized egg. Clear? जब मेल गेमेट फीमेल के अंदर अटैक करता है, क्लियर, याद रहे कभी भी फीमेल गेमेट मेल गेमेट पे अटैक नहीं करता, मेल गेमेट फीमेल गेमेट पे अटैक करता है हर वक्त, एवरी टाइम। क्लियर, द मेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मेल बॉडी, क्लियर, इट गोज टू फीमेल बॉडी। ये कैसे जाएगा? ये मेल गेमेट फीमेल के अंदर कब जाएगा? जब होगा कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मीन्स सेक्सुअल मेटिंग, इसको हम बोल सकते हैं सेक्सुअल मेटिंग, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो बोला करते हैं वही। क्लियर, कॉपुलेशन और सेक्सुअल मेटिंग इज अ प्रोसेस इन विच द मेल एंड फीमेल दे कम इन कॉन्टैक्ट सेक्सुअली एंड द मेल ट्रांसफर्स इट्स मेल गेमेट इनटू द फीमेल्स बॉडी। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे मेल और फीमेल सेक्सुअल कांटेक्ट में आएंगे और मेल अपना मेल गेमेट्स फीमेल के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेगा, उसको हम बोलेंगे कॉपुलेशन। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, सो मेल गेमेट फीमेल गेमेट दोनों कंबाइन होंगे तो जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट क्या है? इट्स अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, इट्स अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। इसका प्रोसेस का नाम क्या है? फर्टिलाइजेशन, सिंपल फर्टिलाइजेशन। तुम क्या बोलोगे? व्हाट डिफाइन कैसे करोगे फर्टिलाइजेशन को? फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज विथ ईच अदर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज विथ ईच अदर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल गेमेट फीमेल गेमेट फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जाइगोट फॉर्म करेगा। जाइगोट एक सिंगल सेल है, याद रहे जाइगोट एक सिंगल सेल है, इट इज ओनली अ सिंगल सेल। नेक्स्ट, जाइगोट जब ग्रो करेगा सिंगल सेल से लंप ऑफ सेल, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बनाएगा, उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब अराउंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स या उससे ज्यादा भी। लेकिन एम्ब्रियो में क्या होता है? कोई खास बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता। फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल बनेगा जिसका नाम है जाइगोट। जाइगोट सेल डिवाइड करते करते बन जाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में बहुत सारे सेल्स, थाउजेंड्स लैक्स ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं। लेकिन एम्ब्रियो में क्या होता है? कोई बॉडी स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड नहीं होता। सो एम्ब्रियो इज अ लंप ऑफ सेल और मास ऑफ सेल which doesn't have any proper shape or proper body part. लेटर पार्ट में कुछ महीनों बाद, अप्रॉक्सीमेटली एम्ब्रियो बनने के, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में कुछ दिन लगते हैं, एम्ब्रियो से आगे बढ़ के बनता है फीटस या फॉइटस तुम जो बोलते हो। यहां पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स बन चुका होगा और यहां पे प्रॉपर बॉडी पार्ट्स बन चुका होगा। दो ठो सेल मिलके, दो सेक्स सेल मिलके एक सिंगल सेल बनाए, सिंगल सेल से लंप ऑफ सेल बना लेकिन बिना स्ट्रक्चर का, एम्ब्रियो बोले। फिर स्ट्रक्चर जब आ गया मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स को लेके तो फीटस बोले। क्लियर? दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन पार्ट।
फर्टिलाइजेशन ये है, ये उसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसको पोस्ट डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वेरी सिंपल। इंटरनल एक्सटर्नल में क्या फ़र्क है तो पढ़ाया था, बस मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ फिर से इसको। क्लियर? इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर होगा, ओके, इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। एक्सटर्नल आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी। क्लियर? वेरी सिंपल, डन। सेकेंड पॉइंट में हम क्या जान सकते हैं? अगर इनसाइड हो रहा है मतलब जो मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स फीमेल के बॉडी के अंदर जाता है। मेल गैमेट्स एंटर द फीमेल्स बॉडी और फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन यहां पे नो, बोथ ऑफ देम दे डू नॉट एंटर, द मेल गैमेट विल नॉट एंटर इनटू द फीमेल्स बॉडी, दे विल बोथ विल रीच, द मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों क्या होगा? सराउंडिंग एनवायरमेंट। ओके, स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक करना तुम उसको। ओके, तो सराउंडिंग एनवायरमेंट में ये मिलेगा तुमको। क्लियर? मेल गेमेट्स फीमेल गेमेट्स दोनों सराउंडिंग में रह जाएंगे। क्लियर? किसी के बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे। मेल गेमेट कोई भी एनिमल है जैसे कि फिश हुआ, वो अपना मेल गेमेट अपने वाटर, अपने सराउंडिंग वाटर में रिलीज करेगा, फीमेल गेमेट्स भी वैसे ही रिलीज हो जाएगा, दोनों बाहर ही कोलाइड हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है? मेल गेमेट्स फीमेल के बॉडी के अंदर जाएगा और मेल गेमेट फीमेल के बॉडी के अंदर उसके एग से कोलाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे बॉडी से बाहर कोलाइड करता है। क्लियर? अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो डेवलपमेंट ऑफ द बेबी भी इनसाइड द फीमेल्स बॉडी होगा, फीमेल के बॉडी के अंदर वो बेबी डेवलप होगा, यहाँ आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी होगा। क्लियर? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्योंकि बॉडी के अंदर होता है सब कुछ, तो बॉडी के अंदर स्पेस कम है, तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द फीमेल्स बॉडी। समझ में आ रहा है? फीमेल के बॉडी के अंदर स्पेस कम है, इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बहुत कम स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर जाता है, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सराउंडिंग में फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरमेंट। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे जो बेबीज प्रोड्यूस होते हैं ना, वो लिमिटेड 1 2 3 4 ऐसा ही कुछ बेबीज प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे एक साथ, यहाँ पे कुछ 7 8 भी हो सकता है यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बेबीज एक साथ पैदा होते हैं एक्सटर्नल में, क्योंकि एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बॉडी के अंदर सब होता है, तो लिमिटेड विद इन 10 12, जैसे कि डॉग्स में 8 से 10 बच्चे पैदा हो सकते हैं, लिमिटेड है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ तो शुरुआत ही 50 60 100 से होता है एक्सटर्नल में। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? Okay, now let's move on to the advantages of sexual reproduction. Clear? 1 minute. What are the advantages of sexual reproduction? सिंपल सा बात है, एसेक्सुअल में क्या होता था? क्योंकि सिंगल पेरेंट था, वहाँ पे वेरिएशन या चेंजेस बिल्कुल नहीं था। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स हैं, मतलब ये एक, कैरेक्टर इसका भी आएगा, कैरेक्टर इसका भी आएगा, तो नए वाले के पास कैरेक्टर कुछ नया सा आएगा, आधा इसका आधा उसका, तो नया कैरेक्टर यानी यहाँ वेरिएशन दिखाई देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन दिखाई देता है, और वेरिएशन का खास बात यह है कि ये इवोल्यूशन यानी कोई भी स्पेसीज का डेवलपमेंट में काम आता है। सिंपल सा बात है, वेरिएशन मीन्स changes which will bring new types of development in a animal's body. Asexual reproduction में क्या होता था? आइडेंटिकल होते थे, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग पैदा होते थे, लेकिन सेक्सुअल में तो वेरिएशन आ रहा है, मीन्स दे आर नॉन आइडेंटिकल। क्लियर? जिसकी वजह से कि इवोल्यूशन अच्छा रहता है, डेवलपमेंट अच्छा आता है। क्लियर? दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तुम्हें खुद नोट्स बनाना है इस पार्ट का। क्लियर? और एक टॉपिक में तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था
कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फर्टिलाइजेशन में कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे जो नया जाइगोट बनता है इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, डबल नहीं होता। क्यों डबल नहीं होता? तुम कैरेक्टर्स अच्छे से पढ़ना। मेल गैमेट्स, नॉर्मल सेल्स का बात कर रहा हूं, दे हैव 46 पीसेस ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 पीसेस ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन गैमेट्स वो नॉर्मल सेल का बात है, सोमेटिक सेल का बात कर रहा हूं। यहां पे मैं गैमेटिक का बात करूंगा। गैमेटिक सेल में सिर्फ 23 पीस होता है, 23 पीस। दोनों कंबाइन करके बनाएंगे 46 पीस, और 46 पीस तो नॉर्मल सेल का नंबर है। ओके, नॉर्मल सेल का नंबर है, नॉर्मल सेल का। क्लियर? समझ में आ रहा है? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों सेक्स सेल हैं। सेक्स सेल में सिर्फ 23 पीस यानी हाफ नंबर ऑफ सेक्स सेल्स होता है, जिनको कंबाइन करने पे 46 सेक्स सेल्स होता है। और 46 सेक्स सेल, 46 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स कंबाइन होकर 46। और 46 मतलब ये कोई डबल नंबर नहीं है, ये नॉर्मल सेल का नंबर है। क्लियर? दैट्स व्हाई this thing, the zygote, or during fertilization, during sexual reproduction, the number of chromosomes or number of DNA does not get doubled. Clear? समझ में आ रहा होगा तुमको। नेक्स्ट एक और चीज़ भी है, प्यूबर्टी पढ़ाया था तुमको लास्ट क्लास में, तो वो मैं और रिपीट नहीं करूँगा। तुम लोग प्यूबर्टी का नोट्स खुद बनाओ। क्लियर? और वहाँ पे चेंजेस दिखाना, प्यूबर्टी का डेफिनेशन लिखना। और गर्ल्स में प्यूबर्टी थोड़ा अर्ली आता है, लाइक 10 to 12 ईयर्स में आ जाता है। बॉयज़ भी, गर्ल्स का बात है, बॉयज़ में देखेंगे तो इट विल टेक फ्रॉम 11 to 13 और समटाइम्स 12 to 14 ईयर्स के एज में आता है। क्लियर? तो गर्ल्स में मैच्योरिटी थोड़ा जल्दी आता है, अ बिट क्विकर। क्लियर? मेन चेंजेस क्या आएगा प्यूबर्टी के समय? गर्ल्स में सेक्स हार्मोन्स डेवलप होता है और बॉयज़ में भी उनका सेक्स हार्मोन। गर्ल्स का सेक्स हार्मोन तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, गर्ल्स का सेक्स हार्मोन, और बॉयज़ का टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर? सो इन सेक्स हार्मोन्स की वजह से सेक्सुअल चेंजेस बहुत सारे आते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स, बिहेवियर में चेंज, ये सब आता है। वो सब तुम्हारे बुक में दिया गया और तुम भी पढ़ चुके हो, तुम्हें बताया था मैं इसके बारे में। तो एस्ट्रॉन से पूरा पार्ट पढ़ना है, एनालाइज करना है और खुद लिखना है नोट्स को। क्लियर? समझ में आया? सो फॉर टुडे दिस मच। प्लीज मेक योर नोट्स कंप्लीटेड टुडे इटसेल्फ। जितना नोट्स पे दूंगा आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जितना नोट्स खुद बनाने बोला हूँ वो भी आज के आज खत्म कर लो। क्लियर? डोंट बी लेट। हमारे पास टाइम बहुत कम है, वी हैव ऑलरेडी वेस्टेड अबाउट 15 डेज में क्लास ले नहीं पाया। मैं अभी स्पीड बढ़ा दूंगा क्लासेस का। और याद रहे, तुम अगर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तुम लोग ग्रुप में हो, अगर तुम्हारा रेस्पॉन्स रेगुलर नहीं रहा, ग्रुप से निकाल दिए जाओगे। क्लियर? हैव अ गुड डे एवरीवन।